Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to. Hello friends, this is Raghav. Welcome to my channel. Today we will discuss about option Greeks. In the first part, we already discussed the option chain and its basics, like what is option chain, what is open interest, what is the strike price, what is bid price. So basics of option we already covered in the part 1. In part 2 we will discuss the option Greek, like what is delta, what is theta, what is vega, and how it affects the option values. So we will discuss further one by one. So let's discuss what is option Greek. So what is option Greek? So delta, gamma, vega, theta are known as the Greeks. You already heard about this. What is delta, what is gamma, what is vega? The two key components is delta and theta. Theta is the time maturity, मतलब टाइम के साथ उसकी ऑप्शन की जो डीके होते हैं वो थीटा रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा की स्पॉट प्राइस के हाउ मच कवर करने पर उस ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ती है. सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस है 100, अगर वो आगे 100 रुपीज़ और मूव करता है तो ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, वो रिप्रेजेंट होता है थ्रू डेल्टा. सो delta, gamma, vega and theta are known as the Greeks and provide a way to measure the sensitivity of an options price to various factors together. The Greeks let you understand the risk exposure. इसके थ्रू हमें रिस्क क्या रिस्क है, उसका एक्सपोजर क्या है रिलेटेड टू एन ऑप्शन और बुक ऑफ ऑप्शंस. So key option Greeks. Let's understand what is the key option Greeks and what is their dependent and independent variables. So there is key option Greeks. So first one is delta. Their dependent variables is option price. Means delta depends on option price ki how much it travels the spot price, then what is the value changes in option, that depends on delta. Gamma depend on delta. Vega depend on option price. Theta is also depend on option price. Rho option price. Independent variables. So delta का independent variables है value of underlying asset. asset की value से कोई फर्क नहीं पड़ता. Gamma value of underlying asset. This is the independent variable. Vega depend on vega volatility. Theta time to maturity and rho interest rates. So this is the major key options and the dependent and independent variables. Later we will discuss step by step what is theta and what is its. So now first topic is delta. So let's discuss the delta. So delta is measure of sensitivity of an option price changes relative to changes in underlying assets price. If the price of the maturity asset increase by 100, the price of option will change by delta amount. Means अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 100 रुपीज़ इंक्रीज होगी तो उसका डेल्टा द ऑप्शन की प्राइस कितनी चेंज होगी वो डेल्टा अमाउंट से पता चलता है. सपोज निफ्टी 50 का इंडाइसेस है, आप सबको पता है. सो निफ्टी करेंट में 16,250 है. अगर मैं 16,350 का कॉल बाई करता हूँ तो 250 से 350 100 रुपीज़ के मूवमेंट पे मेरे ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, तो मेरे को उसका डेल्टा चेक करना पड़ेगा. तो डेल्टा 250 के आसपास क्लोज है तो
अगर डेल्टा वहाँ पर 0.4 है तो निफ्टी की वैल्यू, निफ्टी का स्पॉट प्राइस इफ़ 100 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा तो मेरा 16,250 का जो स्पॉट का ऑप्शन का प्राइस होगा वो 40 रुपीज़ इंक्रीज़ होगा। मीन्स इट विल इंक्रीज बाय 250 प्लस 40 मीन्स 290, देन ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 290। सो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा यू clearly understand the strike price and you clearly understand what is the risk involved on that। अगर उसके अपोजिट भी जाएगा तो मेरा कितना डीके होगा। सो द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा इज डेल वी बाई डेल एस, वेयर डेल इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, वी ऑप्शन प्राइस theoretically and as the underlying asset price। तो ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर बेसिक नॉलेज, बट आपको सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा क्या होता है, वो उसका मतलब ऑप्शन प्राइस से क्या लिंक है। तो डेल्टा वही बताता है कि अगर आपको कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है तो आप उसका अगर डेल्टा की वैल्यू चेक करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके ऑप्शन की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ होगी फर्दर स्पॉट प्राइस मूव होने पर। इसको हम डिटेल में आगे और देखेंगे आगे स्लाइड्स में। ये एक बेसिक फार्मूला है जिससे अंडरस्टैंड होता है। सो दिस इज द ऑप्शन चेन वेयर मेंशन द ग्रीक वैल्यूज लाइक गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, and this is the interest and this is the LTP which we already discussed in the option chain first part, and this is the strike price। so this is the delta value। so निफ्टी 50 का जो प्राइस है 16,600, अगर मेरे को से 16,000 सपोज निफ्टी 16,600 पे चल रहा है, अगर मैं 16,700 की स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ तो जो मेरी डेल्टा है उसकी वैल्यू दी है 0.41। मीन्स अगर मैं 16,700 की स्ट्राइक प्राइस लूँगा तो निफ्टी अगर 16,600 से 700 में मूव कर रहा है तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी 0.41। मीन्स 100 रुपीज़ का कॉल मेरा 141 हो जाएगा। लेकिन उस समय जो प्राइस चल रहा था वो 160 था, तो अगर ये मूव करता है तो मेरी प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास पहुंच जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ डेल्टा यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ऑप्शन प्राइस एज वेल। सो अगर आपको कंफर्म पता है कि निफ्टी जैसे कोई ब्रेकआउट होता है या कोई पैटर्न आइडेंटिफाई होता है तो आपको, या निफ्टी सपोर्ट के पास है तो आपको पता है कि यहाँ से बाउंस होगा, तो आप एट द मनी की वैल्यू ले लीजिए जिससे आपको क्लियरली उसकी मूवमेंट का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप उस समय 16,500 लेंगे तो अगर निफ्टी 100 प्राइस मूव करता है तो आपको 62 रुपीज़ मिल जाएगा। इसके 2 लॉट ले लिए तो 122। मीन्स फ्यूचर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ले लीजिए। उसके बाद उसका जो थोड़ा बहुत थीटा वैल्यू डीके होगा वो होगा इमीडिएटली, फिर उसको आप उसको सेल ऑफ करके आपको एक प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब एक डिसेंट अमाउंट में आप ऑप्शन की थ्रू इसको प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज डेल्टा। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होगा उसकी डेल्टा की वैल्यू कम होते जाती है। जैसे देख रहे हैं आप 16,700.41 था, 800.3.2। तो आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे तो आप एक बार डेल्टा वैल्यू चेक कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप अगर डायरेक्शन सही है तो आप कोई दूर का तो नहीं ले रहे। पता चला निफ्टी 16,600 पे और आप 17,000 का कॉल ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 100 पॉइंट के मूवमेंट्स पे सिर्फ 10 रुपये, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए स्ट्राइक प्राइस का चूज़ करना भी एक बहुत अच्छा उस समय। फिर बाकी जो अदर वेरिएबल्स हैं उनकी भी वैल्यू दी है, उसको हम फर्दर स्लाइड पे स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। सो होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आया कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा इज़ नथिंग बट कि मेरे स्पॉट की प्राइस अगर एक्स अमाउंट से मूव होती है तो उसकी ऑप्शन की वैल्यू डेल्टा अमाउंट से इंक्रीज़ होगी। इतना आपको याद रखना है, बस फार्मूला एक बेसिक के लिए बताया था, उसको एकदम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ग्रीक गामा, कि व्हाट इज़ गामा। सो लेट्स स्टार्ट।
So what is gamma? So gamma is measure of delta's change relative to changes in the price of underlying asset. मतलब गामा डिपेंड करता है डेल्टा के चेंजेस पे. इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट इंक्रीज बाय $1, द ऑप्शन डेल्टा विल चेंज बाय गामा अमाउंट. And the main application of gamma is assessment of options delta. So an option has maximum gamma when it at the money. Gamma decreases when option in the money or out of the money. Means जो गामा की वैल्यू होती है वो एट द मनी पे ज़्यादा होती है, उसके बाद वो जैसे जैसे इधर डायरेक्शन में मूव होती है गामा की वैल्यू भी कम होती है. सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑप्शन हैज़ मैक्सिमम गामा व्हेन इट इज़ एट द मनी. मतलब एट द मनी में आपको गामा की वैल्यू ज़्यादा मिलती है. तो ये स्ट्राइक प्राइस है जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी का सेम चार्ट, और उसकी जो गामा की वैल्यू है वो इधर रिप्रेजेंट की हुई है. सो व्हाट इज़ गामा? गामा की जो वैल्यू है वो डेल्टा पे है. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी मेरे गामा की वैल्यू भी. तो एट द मनी निफ्टी 16,641 पे है, तो ये 16,600 एक एट द मनी हुआ, जिसमें ऑप्शन की प्राइस आपकी, जिसमें LTP था 160 रुपीज़, जिसमें आपका डेल्टा था 0.52 क्योंकि ये 6. तो गामा मैक्सिमम एट द मनी. जैसे जैसे इधर इन द मनी और आउटसाइड द मनी जैसे जैसे जाता है गामा की वैल्यू कम होती है. इसको सिंपल फॉर्मूले से देखते हैं. जैसे डेल्टा क्या है अभी 0.52 और उसकी गामा की वैल्यू क्या है 0.01. तो जैसे ही डेल्टा आगे जाएगा उसकी वैल्यू 0.01 डिक्रीज हो जाती है. देखिए 0.52 माइनस 0.01 0.41 16,700 स्ट्राइक प्राइस पे. यहाँ पर है 0.0011. तो यहाँ पर जैसे ही डेल्टा की वैल्यू गामा की वैल्यू आगे जाएगी ये कम हो जाता. तो दिस इज़ नथिंग बट द चेंजेस इन द डेल्टा इज इटसेल्फ अ गामा. सो सिंपल डेफिनेशन है. गामा इतनी वैल्यू नहीं, आप डेल्टा याद रखिए. डेल्टा की वैल्यू कितनी चेंजेस होती है कि डेल्टा डिपेंड कौन करता है स्ट्राइक प्राइस से. इससे आपको डिसीजन लेने में इजी होता है. सो लेट्स कवर द नेक्स्ट टॉपिक वेगा. सो वेगा के बारे में स्टडी करते हैं अब. व्हाट इज वेगा? सो वेगा इज एन ऑप्शन ग्रीक दैट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस रिलेटिव टू volatility of the underlying assets. If the volatility of underlying asset increase by 1%, the option price will change by the Vega amount. So the definition of Vega is this, and the formula is Vega equals to dV divided by, where the first derivatives V is the option price and gamma is the volatility of underlying assets. The Vega is expressed as the money amount rather than as decimal numbers. An increase in Vega generally correspond to an increase in the option value, both calls and puts. तो जैसे जैसे वेगा मीन्स वोलाटिलिटी इंक्रीज होती है, तो जो ऑप्शन की वैल्यू है वो बोथ कॉल एंड पुट साइड पे इंक्रीज हो जाती है. तो जैसे ही वेगा, जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में होता है तो वेगा की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जब बुल मार्केट में होता तो वेगा की वैल्यू कम होती है. लेट्स अंडरस्टैंड द वेगा इज मैक्सिमम एट द मनी, और जैसे जैसे आगे जाता है उसकी वैल्यू कम होते जाती है. सो इट्स रिप्रेजेंट्स द वोलाटिलिटी ऑफ द प्राइस. Let's move to another option Greek, that is theta. Theta is the most important factor because अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यू कितनी
डिक्रीज हो रही है एक गिवन टाइम पीरियड में, सो दैट अंडरस्टैंड बाय थीटा. तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज मेजर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑन ए ऑप्शन प्राइस relative to options time to maturity. If the option time to maturity decrease by 1 day, the option price will change by the theta amount. मतलब एक दिन पास होने के बाद उसकी जो वैल्यू की जो डीके होती है दैट इज नोन बाय थीटा अमाउंट. द थीटा ऑप्शन ग्रीक इज ऑल्सो रिफर्ड टाइम डीके. थीटा को टाइम डीके से जाना जाता है. इन मोस्ट केसेस थीटा इज नेगेटिव फॉर ऑप्शन. थीटा की वैल्यू निगेटिव ही होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में. सो इसको आप समझने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज द स्ट्राइक प्राइस एज वी नो एंड दिस इज द थीटा. मीन्स जो निफ्टी का करेंट प्राइस है 16,641. तो अगर निफ्टी होल डे यहीं पे स्पेंड करेगा तो वो उसकी जो वैल्यू है, ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये 76 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो जाएगी एट 16,600 पे. इफ़ स्ट्राइक प्राइस 16,700 है तो उसकी वैल्यू 70 रुपीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी. अगर स्ट्राइक प्राइस 16,900 है तो उसकी वैल्यू -45 हो जाएगी. अगर मतलब ऑप्शन ऊपर नीचे मूव किया और ओपनिंग और क्लोजिंग 16,900 रही तो जो ऑप्शन का जो डीके होगा वो -45 रुपीज़ हो जाएगा कॉल साइड पे. और क्योंकि थीटा इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है और जो आपका थीटा है पुट साइड पे वो अगर 16,500 पे है तो 76 रुपीज़ डीके होगा. 16,300 है तो 71 रुपीज़ डिक्रीज होगा. 16,200 है तो 65 रुपीज़ डीके होगा. तो इट्स ऑल्सो कि हाउ मच अमाउंट डिक्रीज बाय a day that will come to know by theta. So ऑप्शन ग्रीक में दो इम्पॉर्टेंट है. एक आपको डेल्टा जानना होता है कि मेरे ऑप्शन की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, और एक थीटा. ये दो की इम्पॉर्टेंट है. बाकी वेगा इज सो नोन बाय वोलेटिलिटी एंड गामा से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि गामा डेल्टा इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि मेरी जो वैल्यू आगे जा रही हो कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है. सो मेनली जो आपको देखना होता है वो डेल्टा और थीटा. आगे है ऑप्शन ग्रीक रो. सो लेट्स ट्राई टू रो मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस रिलेटिव टू इंटरेस्ट रेट्स. इफ अ बेंचमार्क इंटरेस्ट rate increase by 1%, the option price will change by the row amount. The row consider the least significant among other option Greeks because option price are generally less sensitivity to interest rate changes than to change in the parameter. So this is the row formula where the first derivatives v is the option price, r is the interest. रो इतना मैटर नहीं करता ऑप्शन पे, बट आपके नॉलेज के लिए कि व्हाट इज़ रो एंड व्हाट हाउ कॉल ऑप्शन है पॉजिटिव रो वाइल रो फॉर पुट ऑप्शन इज़ नेगेटिव. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉल ऑप्शन के लिए जो रो होता है वो पॉजिटिव होता है और पुट ऑप्शन के लिए जो रो होता है वो नेगेटिव होता है. सो फ्रेंड्स, होप you understand what is Greek and what is the use of that and how it is useful to for taking the option price in mind. So जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप उसको माइंड में रखिए कि उसके क्या, जैसे थीटा आपको एक देखना होगा और एक डेल्टा, ये दो फैक्टर आप चेक कर लीजिए करिए कभी भी जब स्ट्राइक प्राइस लेते हैं कि, और ऑप्शन को कोशिश करिए ज़्यादा दिन होल्ड ना करें. मतलब सेम टाइम पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए अगर आपके फेवर में है, क्योंकि वो टाइम डे के अल्टीमेटली उसको ले ही जाता है. होप यू अंडरस्टैंड. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. तो गामा मैक्सिमम एट द मनी, जैसे जैसे